President Ambassador of the IQSC. It's my pleasure to introduce our guest today, Dr. Gaganpreet Kaur. She is highly accomplished smile design specialist and orthodontal and cosmetic surgeon. She is also founder of the Skin Glam with extensive expertise in aesthetic dentistry. She is fellow in a medical cosmetic (FMC) and aesthetic medicine from USA. Certified in the advanced injectable since 2009, Dr. Gaganpreet has been transforming lives in her clinic, that is Gagan Dental and Cosmetic Clinic, and through Dr. Aesthetic and Beauty Academy for the skill development. Recognized with the award such as the International Women's Day Award, she is also deeply committed to social cause, founding the Seva Foundation and conducting free health camps annually. As a keynote speaker and health advisor, she inspires many through her dedication to creating positive changes and a beauty smile. Please join me to welcome Dr. Gaganpreet Kaur. Please. Good afternoon, everyone. So you are excited to hear my story? Yes. Thank you so very much. My name is Dr. Gaganpreet Kaur and I am an orodontal surgeon and cosmetologist. Also founder of skincare brand Skin Glam, which I am incredibly passionate about. Today I am here to share my journey from having an idea to building a brand and making an impact. I hope my story and insight will inspire you and perhaps give you some helpful strategies if you are considering entrepreneurship. So let's begin my journey with a small video so that you can know more about me. So I'll ask just to play the video. So पहले तो आप मुझे सब बताएं कि इस हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी कंफर्टेबल? पंजाबी? So absolutely okay. Punjabi style karne हैं so that everybody knows what I want to talk to. So I am Dr. Gagan and I did my dentistry from SGRD Amritsar and passed out from the year 2006. Then I pursued my aesthetic dentistry from New Delhi and furthermore I opened my own clinic in 2009 by the name of Gagan Dental and Cosmetic Clinic here in Ludhiana, Dugri Phase 1. तो जब मैं शुरू किया I just started with one chair, so it was a dentist, which was dentistry जो मेरा passion सी, मेरा प्यार सी. So my first thing, if you want to be entrepreneur, you need to love your work. So that is what I say to everybody. If you love your work, you are passionate about your work. If you worship your work, you gonna be successful. किसी दिन तो आप जरूर कामयाब हो जाएंगे. बस एक step लेने की देर है. So I started with one chair in dentistry and today it's been almost 16 successful years of spreading smiles with 4 chairs and full building, and I'm doing cosmetology too and having my own skincare brand by the name Skin Glam, which is on Amazon too. So आज की जर्नी जो मुझे आप सबके साथ शेयर करनी है, that is how I, being a dentist and cosmetologist, started my skincare brand Skin Glam. So first about that. Are you able to hear me now? So first, if I start with the dentistry, so I did my dentistry and I was passionate about my work. तो मुझे सबसे पहले यही था कि जिस क्लिनिक में मैं अपना ट्रीटमेंट कर सकती हूँ, मैं अपना एक कारवालियों का ट्रीटमेंट कर सकती हूँ, तो I want to create that atmosphere. So everything is sterilized in my clinic and I start with the equipments, advancements, chairs, UV sterilizers, X-ray machines. So everything is up to the mark. So ਤੁਹਾਡੀ technology ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ best ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ when you are taking an entrepreneurship, when you want to start your own startup. So I started with an idea that I want to create an environment wherein I can treat myself. ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਦੰਦ clean ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ filling ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ chair ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹਾਂ. So if I can sit, I can allow anybody sit at that chair. So I think the story has begun. We can watch that and then we'll start again. वो ही छूता है जो उसे पाने की जिद और ये जिद मुझे मेरी माँ से मिली है और ये जज्बा मुझे मेरे पिताजी से मिला है. Born in year 1983 to a loving parents, Mr. Atamrita Singh, who is a trade merchant in medicine, Mrs. Gurjeet Kaur, who is a homemaker.
और उन्होंने मुझे घर को मोतियों की माला की तरह पिरोना सिखाया है। No wonders, in spite of being a working woman, मैं एक ममता भरी माँ हूँ, एक अच्छी बीवी हूँ और एक गुणकारी गृहिणी हूँ। My two sisters, one being a successful fashion designer, Mrs. Simran Chawla, and other a successful makeup artist, Mrs. Supreet Bedi. जैसे कि आर्टिस्ट्री हमारे खून में दौड़ती है। I dream my painting and then I paint my dreams. Dreamt for this life and it happened. It took a lot of courage and a hard work, and then it was not just a dream but reality. I was created to create beautiful smiles. If I were a metal, I would be a part of dental equipments, taking away the scare and make people smile. क्योंकि हंसते हुए चेहरों में खुदा नजर आता है। As a young girl, I used to watch my uncle, Dr. Manjeet Singh, a practitioner in general medicine, watching healing patients, making them smile. I always wanted to be a part of that moment. और फिर किसने सोचा था कि यह जज्बा मेरा सपना बन जाएगा, और इसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए I took up dentistry as my career and topped in it. And I started supporting myself at very early age. And this independence have surely given me wings to fly, new horizons to touch. And I didn't stop at only being a dentist. I also took up aesthetics and laser cosmetics and making beautiful faces. In 2008, there came a turning point in my life. I had to choose between the man of my dreams or continuing my higher education and going abroad. And I chose him, Mr. Balpreet Singh, who is the professional and is currently working as a regional head in Pine Labs. I can proudly say that he's the man behind my success, a pillar of my strength. To add on, I'm blessed with the supporting in-laws who always encouraged me in every way. और फिर ईश्वर ने मुझे दो बहुत ही खूबसूरत तोहफे बख्शे जो आज मेरी दुनिया है। My two super cute kids, सीरत, who's 11 years old, and Anaya, जो 3 साल की एक प्यारी सी मेरी खूबसूरत बेटी है। पर ये जर्नी यहीं खत्म नहीं हुई, and finally coming towards my work, which is the part of my identity. I started my venture, my dream, in 2009 as an aesthetic dentist working in my clinic, Gagan Dental, and cosmetic clinic, and making people smile, spreading these beautiful smiles. क्योंकि हंसते हुए चेहरे देखकर मैं खुद बहुत खूबसूरत और खुश महसूस करती हूँ। Completing 11 years of spreading smiles, we take care of your mouth like an angel because your smile is our passion. I want to thank each one of you for always trusting in me, believing in me. मेरा इस खूबसूरत सफर में साथ देने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। Thank you, keep smiling, keep rocking. Thank you so very much. But this video is 5 years ago when I was awarded and honored by the Wow Women Award for making and creating difference in the lives of many people, which I am truly blessed. तो अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी क्लिनिक को ऑलमोस्ट 16 years हो चुके हैं। तो यहाँ पे ही एक स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू किया मैंने। When I was doing dentistry, I was creating wonders in people's life. The one thing which I have maintained is consistency. Consistency बहुत ज़्यादा ज़रूरी है when it comes to your work. So I can proudly say that जो patients मेरे पास 2 years से आ रहे थे, आज वो hostels में है, कोई 15 years का है, कोई 16 years का है, they are still coming to me because I believe prevention is better than cure. तो यहाँ पे एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी क्योंकि डेंटिस्ट हूँ तो वो तो बताना ज़रूरी है कि आपका जो डेंटल प्रॉब्लम है, अगर किसी को रूट कैनाल, इम्प्लांट्स या एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ रही है, दैट मीन्स यू आर इग्नोरिंग योर डेंटल हेल्थ। तो अपनी डेंटल हेल्थ को इग्नोर मत करें, जस्ट नॉर्मल 6 months में एक बार चेकअप,
आपकी नॉर्मल स्केलिंग एंड पॉलिशिंग, नॉर्मल फिलिंग से आप बड़ी प्रॉब्लम जो है डेंटिस्ट्री की उससे बच सकते हैं. सो दैट इज व्हाट, मेरे पास आज 500 से अबव फैमिलीज जुड़ी हुई हैं. उसका सिर्फ एक ही रीजन है दैट वी गाइड देम कि अगर आप किसी एक पेन से या रूट कैनाल से हमारे पास आ रहे हैं, उसके बाद हमारी गारंटी है कि आपके अगर माउथ में 32 टीथ हैं तो किसी भी दांत में कीड़ा ना लगे. उसके लिए प्रॉपर फॉलोअप रहता है, 6 मंथ्स में एक बार चेकअप रहता है. कोई छोटी मोटी फिलिंग हो दैट वी डू. सो वी बिलीव इन प्रिवेंशन. बहुत ही अच्छी चल रही थी डेंटिस्ट्री, अभी भी चल रही है, बिकॉज मैंने जैसे कि बोला आई एम पैशनेट एंड इन लव विद डेंटिस्ट्री. तो उसके बिना तो मैं एक दिन भी नहीं रह सकती. जिससे मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आई डेंटिस्ट्री से, कि अपने काम से सब इतना प्यार करो कि जो है यूनिवर्स खुद ही आपके साथ चलना शुरू कर दे. सो व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, मेरी बेटी होने वाली थी, सो इतना मेरे को पैशन है अपने काम से कि बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं. तो मुझे क्लिनिक से कॉल आता है कि एक बेटे को पेन हो रही है, उसने एक्सट्रैक्शन करानी है. ऑल्दो क्लिनिक में बहुत सारे डॉक्टर्स एंड स्टाफ वर अवेलेबल, बट ही वाज लाइक मुझे डॉक्टर गगन से ही करानी है. So can you imagine, I was in pain and labor, still I told my husband कि I want to go to my clinic. I did the extraction for that child. उसका दांत निकाल के फिर मैं अपनी डिलीवरी करने जो है वो गई हूँ. So that is the passion I have for my work. तो ऐसा अगर पैशन आप सबके पास है, अगर आपके पास एक पैशन है, एक सपना है, तो कोई भी आपको उससे जुदा नहीं कर सकता. सो डेंटिस्ट्री करते हुए बहुत अच्छा चल रहा था, और फिर कोविड आ गया हम सबकी जिंदगी में. कोविड आया, ऑल्दो हमने उसको एक चैलेंज लिया, वी डिडंट सिट बैक. बहुत सारे डेंटिस्ट को रिस्ट्रिक्शंस हो गई कि आपने अगर केस करना है, पीपीटीज पहननी है. हमने भी केसेस किए, बट स्टिल वो जो आप पहले जिस विजन से और जिस पैशन से काम कर रहे थे, लोगों को भी आने में डर था, तो एक डेंटिस्ट्री ने बैक स्टेप ले लिया ड्यूरिंग कोविड टाइम्स. और तब मुझे मौका मिला कि मैं अपना एक जो सपना है उसको पूरा कर सकूं. बिकॉज जब मैं काम करती थी, सिंस आई एम एस्थेटिक डेंटिस्ट, I used to create beautiful smiles. मुझे स्माइल बनानी जो है, that is my speciality. Otherwise we have team of doctors, root canal specialist, oral surgeon, but जो मेरी speciality है that is aesthetics. So when I used to create beautiful smiles, मेरे patients ने मुझे कहना कि मैम आप स्माइल तो beautiful बना रहे हैं, क्या आप faces beautiful नहीं बना सकते? So that clicked in my mind कि हाँ यार, मतलब अगर मेरी क्लिनिक में कोई आए, मैं उसको ये कहूँ, इससे ऊपर की सारी प्रॉब्लम मेरे पे छोड़ दो, बाकी अपना ध्यान रखो. सो कोविड जब मैं डेंटिस्ट्री में बैक स्टेप ले लिया, देन आई डिसाइडेड टू डू कॉस्मेटोलॉजी. सो कॉस्मेटोलॉजी के बहुत सारे तक कोर्सेज मैंने देखे. एफएमसी कॉस्मेटोलॉजी मैंने किया, देन आई डिड फेलोशिप इन एस्थेटिक डेंटिस्ट्री. सो ये सारे डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स थे. इसमें से कुछ प्रोग्राम आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं चंडीगढ़ जाके कर पाई, क्योंकि कोविड टाइम्स में ये कोर्सेज ऑनलाइन बहुत ज़्यादा होने लग गए थे. सो मैंने कॉस्मेटोलॉजी की. कॉस्मेटोलॉजी ने न्यू विंग्स दिए मुझे अबाउट स्किन केयर. देन आई गॉट एसोसिएटेड विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि आपके पास तो एक बहुत बड़ा टूल है. हमारे पास जो मोबाइल्स हैं, जो लैपटॉप्स हैं, आजकल जो एडवांसमेंट चल रही है, आप सारी दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं जस्ट विद वन क्लिक. सो आई डिड द सेम. आई गॉट एसोसिएटेड विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिनके मैं पैनल में हूँ आज भी. आई एम द कमिश्नर ऑफिसर विद द IAO. इफ यू हैव हर्ड, यू नो व्हाट इज IAO. सो आई एम द कमिश्नर ऑफिसर. आई गो फॉर द इंस्पेक्शंस इन देयर इंस्टीट्यूट्स. तो वो भी एक नया विंग मुझे मिल पाया अकेडमी खोलने का, जिसमें हमने अपनी अकेडमी खोली और बच्चों को कॉस्मेटोलॉजी और डेंटिस्ट्री के एडवांस कोर्सेज के बारे में वी स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग. बट कॉस्मेटोलॉजी करते करते मुझे बहुत ही ल्योर हुआ टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स. If you can see, we have got all the range of product. अगर आप Amazon पे स्किन ग्लैम टाइप करेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज आएंगे, और आई शेयर माय इंस्टाग्राम लिंक, वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमारी सारी स्किन केयर रेंज है. बट जब मैं कॉस्मेटोलॉजी कर रही थी तो मुझे हाइलुरोनिक एसिड, इट इज वन प्रोडक्ट. हाइलुरोनिक एसिड काफी गर्ल्स ने तो सुना होगा, आई गेस. हैव यू हर्ड अबाउट हाइलुरोनिक? सो इट इज अ वेरी गुड सीरम. हाइलुरोनिक इज अ वेरी गुड सीरम. अगर हम उसको अप्लाई करते हैं अपने फेस पे, तो वो एक्ने प्रोन स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए इट इज अ बैलेंस आउट थिंग. हमारे फिलर्स में, बोटॉक्स में हाइलुरोनिक एसिड यूज होता है. तो मुझे बहुत ही अल्योर करा कि हाइलुरोनिक एसिड के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, एंड दैट इज हाउ माय स्टार्टअप केम. तो मुझे लगा कि हाइलुरोनिक एसिड क्रिएटिंग वंडर्स, व्हाई कांट आई क्रिएट माय हाइलुरोनिक एसिड. एंड माय फादर वाज अ फार्मासिस्ट.
तो वो कहते हैं ना, बचपन की कोई एक ड्रीम आपके दिल में रह जाती है। तो कभी मैंने अपने फादर को सुना था, ही इज नो मोर नाउ, बट उनकी हेवनली ब्लेसिंग्स डेफिनेटली मेरे साथ हैं। तो उन्होंने कभी ऐसा सपना सोचा था कि मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो। वो कहीं मेरे जहन में, मेरे दिमाग में रह गया। मैंने सोचा अब मेरे पास मौका है इसको पूरा करने का। सो आई स्टार्टेड विद वन प्रोडक्ट, हाइलुरोनिक एसिड। वी आर 3 सिस्टर्स, सो आई डिस्कस्ड इट विद माय यंगर सिस्टर कि ऐसे मेरे दिमाग में एक प्लान आ रहा है, सो व्हाट टू डू। आपको तो फिर भी बहुत सारे चांसेस मिल रहे हैं। अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं तो हमें कुछ भी हेल्प नहीं थी टुवर्ड्स गवर्नमेंट की तरफ से। अभी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स बहुत सारे आ गए हैं। सिंस आप इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा होगा। तो हमारे को तो कुछ ऐसा सपोर्ट भी नहीं था। सो आई डिस्कस्ड इट विद माय यंगर सिस्टर कि मुझे ऐसे हाइलुरोनिक एसिड सिरप है, मुझे अपना बनाना है। तो शी वाज लाइक, मतलब शी सपोर्टेड मी कि दीदी यू कैन एटलीस्ट ट्राई। तो मैंने इसके लिए रिसर्च शुरू कर दी। आई स्टार्टेड ऑन विद माय रिसर्च। तो जब मैंने रिसर्च शुरू करी तो मुझे पता लगा कि हाइलुरोनिक की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है। हमने नेट पे बहुत सब कुछ देखा कि 1% अवेलेबल था लैक्मे का, 1.5 अवेलेबल था, 2 भी अवेलेबल था, बट आई वांटेड टू मेक 3%। हमने 3% की मैन्युफैक्चरिंग करवाई, उसको टेस्ट किया। ऐसे नहीं कि मैंने वेगली इंट्रोड्यूस कर दिया। देन हमारा ये फर्स्ट प्रोडक्ट विच इज हाइलुरोनिक एसिड केम इनटू द एग्जिस्टेंस, जिसकी हमने 6 मंथ्स के आसपास रिसर्च करी ऑन माई सेल्फ। ऐसे नहीं कि मैंने किसी को गिनी पिग बनाया हो, मैंने खुद पे किया, अपनी मॉम पे किया, दोनों सिस्टर्स पे किया, क्योंकि हम ब्लेस्ड हैं। और ये ऐसा प्रोडक्ट है, मैं ये चाहती थी मेल्स भी यूज करें। सो आई टेस्टेड इट ऑन माय हस्बैंड एंड माय सन टू। सो बहुत ही अच्छा रिजल्ट था। अगर उनका ड्राई स्किन था किसी का तो वो बैलेंस होने लग गया, ऑयली था तभी भी बैलेंस आउट। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट जिसने मुझे विंग्स दिए। अपनी खुद की क्लिनिक थी तो मुझे एक वो बेनिफिट था, एंड आई स्टार्टेड giving it to my patients. I got the repeat orders, and then we wanted to name this. हमने बहुत सारे नेम सोचे, ग्लैमो स्किन करें, स्किन ग्लैम करें, एंड फाइनली स्किन ग्लैम आ गया। कहते हैं ना, कोई भी सफर इतना आसान तो हो नहीं सकता। तो मुझे भी बहुत सारी मुश्किलें आई। हमें मालूम नहीं था कि we had to register the brand. So when the registration happened, रजिस्ट्रेशन के दौरान हमने रजिस्टर कर दिया, but somebody else to registered by the same name. But फिर भी मैंने हार नहीं मानी, we did case और बहुत कुछ किया, and आज we can proudly say that Skin Glam is a brand registered by the name Dr. Gagan के अंदर ही आता है। So वो Skin Glam आज register हो चुके हैं, but सफर इतना आसान नहीं था। इस तरह की बहुत मुश्किलें आई कि आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही, उसके लिए मुझे 2 साल वेट करना पड़ा। बट स्टिल कहते हैं ना कि माय फादर सेड वन डे कि अगर मुश्किलें आए तो क्विट मत करो, रेस्ट कर लो। सो वी टुक अ ब्रेक। अगर अभी भी हम यहाँ पे सब अगर बोर हो रहे हो तो एक लंबी ब्रेथ ले सकते हैं, टेक अ डीप ब्रेथ। एक डीप ब्रेथ लेते हैं तो रेस्ट हो जाएगा, क्विट नहीं करेंगे, सो दैट वी कैन कंटिन्यू आवर जर्नी। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप सबके चेहरे पे एटलीस्ट स्माइल आ गई है इस रेस्ट के नाम से। सो एटलीस्ट एक गहरी सांस हम लेके वी कैन मूव फर्दर इन द लाइफ, बट यू डोंट हैव टू क्विट। अगर हमने क्विट कर दिया तो आप चढ़ ही नहीं पाए। तो कहते हैं ना, किसी की जिंदगी में कोई मेंटर होता है। मेरी जिंदगी में मेरे फादर ही मेरे मेंटर रहे हैं। बचपन की कहानियां बहुत याद रह जाती हैं। सो ही यूज्ड टू से मी, चींटी एक बार चढ़ती है गिरती है, चींटी दूसरी बार चढ़ती है फिर गिरती है, बट एक दिन तो वो कामयाब हो ही जाती है। सो ट्राई 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 until you succeed. So that is the formula. कहते हैं ना, पुराने बुजुर्गों की बातें हमेशा याद रखो, नया जितना मर्जी आ जाए। तो ये बात हमेशा से है, ट्राई until you succeed। और ऐसी ही ये बातें बनी हुई, the hard work always pays off. And further we have now range of all the skincare range, starting from the face washes, sunscreen, serums, scrubs, glow pack। और हमारे प्रोडक्ट्स जो है it can be used by both men and women. It is not only that कि women ही यूज कर सकती है स्किन केयर प्रोडक्ट्स, both men and women जो है वो यूज कर सकते हैं। बिकॉज जो मेरी ये स्किन केयर है, इट इज अ जर्नी नॉट अ स्प्रिंट, एंड ब्यूटीफुल स्किन रिक्वायर्स द कमिटमेंट नॉट मिरेकल। सो इट इज फॉर एवरीबडी आउट हियर, द यंगस्टर्स। इफ यू साथ साथ हम टिप्स भी दे रहे हैं आपको, इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, जर्नी के साथ आई एम गिविंग यू फ्यू टिप्स। तो क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग जरूर करो आप सारे, बिकॉज हमारी सारी बॉडी कवर्ड है। ओनली और दिस एरिया जो है दैट इज एक्सपोज्ड। किसी को धूल भी मिल रही है, मिट्टी भी मिल रही है, पोल्यूशन भी मिल रहा है।
So you need to cleanse your face twice. एक बार cleansing जरूर करें, cleansing के बाद serum according to your face type, and then moisturizer and seal it with the sunscreen. Sunscreen is mandatory for everybody. अभी मैं नीचे भी बैठी थी रजिस्ट्रार सर के पास, so he was like कि sunscreen लगानी कितनी जरूरी है. मैंने कहा sunscreen लगानी इस लाइट के नीचे भी जरूरी है. ये भी UV लाइट्स है, so we think कि इसके नीचे तो कोई इशू नहीं है, हम घर के अंदर ही हैं, तो हम सनस्क्रीन ना लगाएं. So but इसका आंसर नो है. डेफिनेटली आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी है, चाहे आप घर के अंदर हैं चाहे बाहर हैं. इन केस यू आर इनसाइड योर हाउस तो आप SPF 30 तक यूज कर सकते हैं. आउटसाइड है तो आप SPF 50 यूज कर सकते हैं. तो योर स्किन टेल्स योर स्टोरी, मेक इट अ ब्यूटीफुल वन विद स्किन ग्लैम. So I usually say take good care of your skin. You will wear it every day for rest of your life. So skin come first, makeup second, and then smile always. तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो उसके बाद आपको अपने कंफर्ट जोन से जो है निकलना पड़ेगा. You'll have to put pressure on yourself and you'll have to come out of your comfort zone. In fact एक uncomfortable situation में अपने आप को comfort करना पड़ेगा. आइडियाज लेकर आने पड़ेंगे इफ यू वांट टू स्टार्ट योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी. और जर्नी जो है बहुत लंबी होती है. सिंस आई नो यू आर फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, ओके, थर्ड ईयर इज आल्सो हियर. सो आपके पास बहुत टाइम है. ऐसा ना सोचिए कि मेरे पास बहुत टाइम है तो मैं थर्ड ईयर कर लूँ उसके बाद मैं कुछ सोचूंगा. आप अभी भी अपने आइडियाज को कर सकते हैं, इनकलकेट कर सकते हैं. अगर जरूरी नहीं, मेरी तो एक स्किन की स्टोरी है, आपके पास शायद कोई और स्टोरी हो, आपके पास शायद कोई और इनोवेशन हो, पर उस आइडिया से डरे मत. मेरे सामने तो बहुत एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स थे, लैक्मे था, लॉरियल था और इतने सारे ब्रांड्स लुधियाना के ही हैं, हम सबको पता है. बट स्टिल आई टुक अ चैलेंज कि आई कैन कम अप एंड आई कैन वाउचली से आज की हमारा स्किन ग्लैम जो है इट इज डूइंग वंडर्स. इट इज क्रिएटिंग गुड इन एवरीबॉडीज लाइफ. बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें आ रहे हैं. तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये प्रोडक्ट अगर एक चल रहा है, गाड़ी ऑलरेडी चल रही है तो मैं अपनी नई गाड़ी नहीं इन्वेंट कर सकता. सो ठीक है, आउट ऑफ बॉक्स जरूर सोचें, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग भी है, सो देन आल्सो यू कैन हैव अ चैलेंज एंड क्रिएट योर ओन. सो दिस इज एन एडवाइस फॉर ऑल द एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स दैट यू कैन स्टार्ट विद अ पर्पस. आपके पास डेफिनेटली कोई पर्पस होना चाहिए when you want to start your entrepreneurship. जैसे मेरे पास एक पर्पस था, मेरे फादर की ड्रीम. ऑल्दो ये इमोशनल कनेक्ट था जिसने मुझे बहुत हिम्मत दी. मैं हार भी नहीं मानी कि नहीं, मुझे अपने फादर का सपना पूरा करना है. एंड देन आई कैन रेजोनेट दैट ड्रीम विद एवरीबॉडी आउट हियर, बिकॉज एक स्किन केयर ऐसी चीज है जो हम सभी को चाहिए. स्किन केयर इज अ ब्रांड दैट एवरीबॉडी नीड्स. स्किन केयर सबको चाहिए. तो आप ये देखें कि आपका पर्पस जो है वो किसी दूसरे की लाइफ में क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा है. देन आप कैलकुलेटेड रिस्क लें. जैसे मैंने क्या रिस्क लिया कि मैंने छोटे बैचेस बनाने शुरू किए. आई डिडंट मेक द बैचेस कि मैं बड़े बड़े बैचेस बनाऊं. मैं बहुत बिग बैचेस क्रिएट कर रही हूँ जिससे कि मेरे को नुकसान हो सकता है, बिकॉज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में एक्सपायरी भी रहती है. सो हमने मार्केट को रिसर्च करके हमने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया कि आवर विजन को भी हमने साथ में रखा और हमने कैलकुलेटेड रिस्क लेके we did. And then mentorship बहुत जरूरी है. जैसे आज I am here to share my story, और बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे अपनी स्टोरी शेयर करेंगे. So you have to have mentor. अगर आपके पास कोई मेंटर नहीं है तो भी आप जो है जर्नी में स्लिप हो सकते हैं. तो गाइडेंस जरूर ले अपने टीचर्स की, अपने मेंटर्स की. कोई आपका आइडियल होगा, कोई आपके लिए इंस्पिरेशन होगा. सो आपने वो जरूर करना है. तो मेरे लिए ये 3 पॉइंट्स हमेशा से ही इम्पोर्टेंट रहे हैं. That is what I am sharing with you all. That next please. Coming to next, what lessons I have learned is that persistency pay off. जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि रुको मत, बस चलते रहो. So that is what I truly believe today also. कि I choose to make rest of my life the best of my life, and then you can see the magic. तो आज अगर आप सब इस मैनिफेस्टेशन से जी रहे हैं, आई ट्रूली बिलीव इन मैनिफेस्टेशंस. तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आई वांट टू मेक रेस्ट ऑफ माय लाइफ द बेस्ट ऑफ माय लाइफ, ये आज से शुरू करें. और कहते हैं ना कि आई बिलीव इन मेडिटेशंस, आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशंस, क्योंकि एक लंबी ब्रेथ लेना, मेडिटेट करना आपके थॉट्स को बहुत क्लैरिटी देता है.
सो वंस किसी मेडिटेशन गुरु से ही मेरी बात हो रही थी, तो मुझे कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने ये सब प्रैक्टिस आप लोग भी कर सकते हैं। जब रात को सो, एक तो मोबाइल प्लीज कीप इट असाइड हाफ एन आवर बिफोर यू स्लीप, क्योंकि आप जैसे थॉट्स कर रहे हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड जो है आपका पूरी रात एक्टिव रहता है। अगर आप मॉर्निंग में उठेंगे तो वो आपके कॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे वो थॉट्स। सो ऑलवेज से गुड थिंग्स बिफोर यू स्लीप, शुक्राने में रहें, ग्रेटिट्यूड में रहें, एंड ऑलवेज से कि यू आर द बेस्ट एंड यू वांट टू मेक योर लाइफ द बेस्ट। सो दैट इज द मंत्रा व्हिच आई एम फॉलोइंग एंड इट इज वर्किंग ग्रेट विद मी। अगर ग्रेटिट्यूड और शुक्राने में अगर आप रहते हैं तो उससे बड़ी तो कोई चीज ही नहीं है। आई यूजुअली से कि अपने आप को इतना नॉलेज और प्यार से भर दे कि घड़ा जो है वो ओवरफ्लो करेगा, तो सब में खुशबू भी खेलेगा ही। तो आपका आइडिया इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना पैशनेट होना चाहिए that it is filled till here so that it can overflow. So हम persistent रहे, हमने कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रखी और फिर हम न्यू आइडियाज को अडेप्ट करते रहे। न्यू आइडियाज में जैसे कि मैं बात करूं, अगर मैं डेंटिस्ट्री आज मुझे की है ऑलमोस्ट 18-19 इयर्स हो चुकी है, आई एम पास आउट ऑफ 2006। तो मैं इतने साल में अगर मैं पुराने ही अप्रोच से चलती रहती तो शायद मुझे वो मुकाम नहीं मिल पाता। सो यू नीड टू एडजस्ट with the upcoming technologies, और उसमें से सबसे बड़ी एक टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत सारी इनोवेशंस हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज देयर इन आवर डेंटिस्ट्री सून। आज आपको पता है डेंटिस्ट्री में हमें कोई स्कैन के थ्रू हम फुल माउथ जो है इंप्रेशंस नहीं लेते। एनीबॉडी ऑफ यू हैव बीन टू डेंटिस्ट? डेंटिस्ट के पास कोई कभी गया है? आपने इंप्रेशंस कभी दिए? कभी आपने माउथ का इंप्रेशन दिया? किसी को वायर्स लगी हो? एनीबॉडी ऑफ यू दिया है कभी किसी ने इंप्रेशन? पहले इंप्रेशन जो होता था ना वो पाउडर इंप्रेशन होता था, ऐसे ट्रे मुंह में रखो इंप्रेशन होता था। आजकल आपको पता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज क्या है? नो इंप्रेशंस बीइंग डन। एक कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वी जस्ट डू द स्कैन। हम कंप्यूटराइज स्कैन करते हैं और हमारे पास मॉडल निकल आता है एग्जैक्ट कॉपी। जब हम इंप्रेशंस लेते हैं उसमें तो फिर भी डुप्लीकेसी होगी 10% की या 20% की। It is like the exact copy, and we have that scan available in our clinic, so that is how we have upgraded ourselves. अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं रखोगे तो you will be left behind. So वो अपग्रेड रखना बहुत जरूरी है। Then customer को क्या चाहिए? So what your patients need, what your client needs। अगर मैं डेंटिस्ट्री की बात करूँ, कॉस्मेटोलॉजी की बात करूँ, या अपने इस न्यू स्टार्टअप स्किन केयर ब्रांड स्किन ग्लैम की बात करूं, तो हर किसी में हमने हमेशा ये सोचा कस्टमर को क्या चाहिए, व्हाट डज द कस्टमर नीड। उसकी नीड्स को देखते हुए, जैसे कि आपको मैंने स्किन केयर ब्रांड के बारे में बताया, हमने इसको टेस्ट किया ऑन माय ओन पेशेंट्स जो मेरे पास 10 साल से 15 साल से आ रहे हैं, वो ट्रस्ट मी। तो हमने उन पे इसको किया, उनसे फीडबैक लिया। उसमें वी डिडंट हेजिटेटेड टू टेक देयर फीडबैक सिंस इट वाज अ स्टार्टअप, वी वांटेड फीडबैक। सो नाउ हम कस्टमर के अकॉर्डिंग, जैसे हमारी अर्लियर पैकिंग वे वर वाइट, इफ यू सी माय अर्लियर पैकिंग्स दे आर वाइट रिप्रेजेंटेड हियर ऑन द टेबल। नाउ आवर पैकिंग्स आर गोल्ड बिकॉज जो क्लाइंट है उन्होंने हमें बोला कि हमें दिखने में और सुंदर पैकिंग जो है वो डिलीवर करती है। आजकल जो दिखता है वो बिकता है। सो हमने इस टेक्नोलॉजी को पकड़ा एंड वी चेंज्ड आवर पैकिंग्स। So that is how the innovation being done, and the lessons which we have learned and we are sharing with you all, that this is how we went off with the persistency, the customer approach and the adaptability. So from ideas to startup, that is what I say, that the groundwork बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप में से कोई स्टार्टअप प्लान कर रहा है? Anybody has an idea here? Anybody of you have an idea here? So अभी मुझे पता लगा है the investors gonna be here in your city university. So are you planning for some ideas and innovations? The investors can invest in you, or still thinking? If still thinking, today is the day. Go sharpen your minds. आप अपने खुद को एक्सप्लोर करें कि मैं क्या कर सकती हूँ। आपको पता है गर्ल्स के लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैंने आपको बोला, ये हमने बिजनेस क्यों शुरू किया? I was a good dentist. I was running my own clinic. कॉस्मेटोलॉजी बहुत अच्छा चल रहा था। Then to why I started a startup. फिर भी मैंने क्यों ये स्टार्टअप शुरू किया? Because ये एक ऐसी चीज है जो हर कॉमन मैन को चाहिए।
डेंटिस्ट्री भी सभी की जरूरत है, दांत सभी को दिखाने हैं, स्किन सभी को ठीक कराना है, बट स्किन केयर, फेस वॉश, सनस्क्रीन ये मासेस को चाहिए. सो दैट इज व्हाट, ये हमारा पेंशन प्लान है कि फर्दर अगर मैं कभी डेंटिस्ट का काम ना कर पाऊँ, यू नो, बीइंग अ डेंटिस्ट वी हैव टू वर्क फ्रॉम आवर हैंड्स, वी हैव टू मेक आवर बैक्स ब्रेक. तो अगर वो मुझसे ना हो पाए कभी, तो मेरे पास एक सेकंड प्लान हो, जो ही हमारा स्टार्टअप प्लान था, स्किन प्लान. सो आपको भी कुछ ऐसा ही आउट ऑफ बॉक्स सोचना है टू मोटिवेट योरसेल्फ, एंड देन यू कैन टेक फ्यू स्टेप्स, मेक अ बिजनेस प्लान, एंड देन बिल्डिंग अ ब्रांड इज ऑलवेज नॉट इजी. ब्रांड को बिल्ड करने के लिए अभी तो मेरी जर्नी शुरू हुई है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड ऑफ. इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ ट्रस्ट. आपको इट्स नॉट जस्ट द लोगो व्हिच इज देयर, इट इज द ट्रस्ट ऑफ जो ये जनता बैठी है, आप लोग बैठे हैं. सो इट इज द ट्रस्ट. अगर आप किसी ब्रांड पे ट्रस्ट करेंगे देन ओनली इट कैन बी helpful for everybody. So that is what I want to say, that you have to take few initial steps. अगर एक स्टेप लेंगे तभी आप कामयाब हो सकते हैं, not even one step. So I heard this quote this morning, that one who wins without a problem, it just the victory, but one who wins with lot of trouble create the history. So we have to create the history by making it happen, and everything that happens for a reason. So you need to find out that reason, you need to find out that innovation in yourself and help yourself find the goal. And in case you want to connect me, these are my credentials, and I want to thank you so much all for listening to my story and my journey of Skin Glam. I hope you found some inspirational and useful takeaway from my path, and I'm happy to answer any question. In case you have any questions, I'm always ready to answer them. किसी को डेंटिस्ट्री से, कॉस्मेटोलॉजी से, स्किन केयर ब्रांड से, स्टार्टअप से, इफ एनी क्वेश्चंस प्लीज. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम, जैसे आपने कहा दैट इन स्किन केयर वी शुड यूज सनस्क्रीन इन आउटसाइड एंड इनसाइड, राइट मैम? व्हाट अबाउट विंटर्स? विंटर्स में भी मस्ट है. सीजन डजंट मैटर व्हेन इट कम्स टू सनस्क्रीन. चाहे विंटर्स हो चाहे समर्स हो, यू हैव टू यूज सनस्क्रीन. विंटर्स में और ज्यादा ये तो रेडिएशंस जो हैं, दे आर मोर स्ट्रॉन्गर इन विंटर्स. सो यू हैव टू यूज दैट इन विंटर्स टू, बिकॉज अभी आप जिस लाइट में बैठे हैं इसमें भी यूवी प्रोटेक्शन की जरूरत है. सो सनस्क्रीन इज मैंडेटरी अपार्ट फ्रॉम एनी सीजन, एनी डे, एनी टाइम. एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज? किसी को भी डेंटल से रिलेटेड भी कोई क्वेरी हो, कोई स्किन से रिलेटेड क्वेरी हो, anybody wants to know more about my product, or you want me to say more about anything? Yeah, they want to hear any tips. I can give on tips with the skin care, I can give on tips with the dental care. So I can repeat few tips. Everybody, for starter journey, तो this mic is working now. मुझे बीच में लगता है कि it's not working. क्योंकि I am pro in giving lectures in schools and colleges, so this was a motivational talk. So वो तो I think you have got to know my journey, that I am a dentist. कि डेंटिस्ट्री में कर रही हूँ, कॉस्मेटोलॉजी भी कर रही हूँ, एंड देन आई हैव एन एकेडमी आल्सो. वी हैव दिस स्टार्टअप प्रोग्राम बाय द नेम स्किन ग्लैम. तो अगर टिप्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेंटल टिप्स वी विल स्टार्ट विद. सो यू शुड ब्रश योर टीथ 2 times a day. 2 times करते हैं आप सारे? मुझे लगता है बड़े बड़े भी नहीं करते हैं ना. एंड सी द स्माइल्स ऑन योर फेसेस. सो क्योंकि यहाँ डेंटिस्ट आपके सामने खड़ा है, तो आई गिव यू फ्यू टिप्स कि 2 टाइम ब्रश जरूर करें. मॉर्निंग करें ना करें, रात को जरूर करें. ऐसा किसी ने बोला आपको कभी? नहीं बोला ना? तो आज मैं बताती हूँ आपको, रात को आपको जरूर ब्रश करना है. रात को ब्रश करके सोए, बिकॉज सारे दिन का खाया होता है. मॉर्निंग भी करना है. यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन प्लीज? मेरे जो सामने वाला दांत है वो थोड़ा सा टूटा हुआ है. बिल्कुल, यही तो मेरी स्पेशलिटी है. इसको हम जोड़ सकते हैं. अभी तो बहुत एडवांसमेंट आ गई है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है. जोड़ना नहीं है, प्लेन करना है. हाँ, प्लेन हो जाएगा. ये लेजर कॉस्मेटोलॉजी होता है. दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग. इसको एस्थेटिक डेंटिस्ट्री का पार्ट कहते हैं, जो मैंने आपको बोला मेरी स्पेशलिटी है. सो इसको हम लेजर से पूरे दांत को प्लेन भी कर सकते हैं, वापस इसको बना भी सकते हैं. सो आप इसको डिले मत करें, इसको जल्दी से जल्दी आप अपने दांत को वापस बनाएं, क्योंकि अगर ये और चिप ऑफ हो गया तो इसकी रूट कैनाल की जरूरत पड़ेगी. रूट कैनाल, आई गेस एनीबॉडी ऑफ यू नो व्हाट इज रूट कैनाल? मेरे और थोड़ा प्रॉब्लम है. मेरे स्किन में थोड़ा दाग है, कट.
काट है, बहुत बड़ा काट, वो कंप्लेन कर सकते हो? सब कुछ हो सकता है आज की डेट में, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल हो. So anything can be done. First, I just need to check where that cut is. So once I'm done with the session, you can definitely consult. मैम वो जो लेजर यूज होता है वो मैंने सुना है बहुत खतरनाक होता है. नहीं, लेजर खतरनाक नहीं होता है. लेजर ओनली वर्क्स ऑन योर अपर लेयर ऑफ स्किन. लेजर के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं. अगर आप उसको ढंग से नहीं करा रहे तो उसका नुकसान है ना. बहुत सारे नुकसान भी है, ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं है. साइड इफेक्ट तो हर चीज का है. बट अगर आपको देखा हूँ मैं, बहुत बड़ा काट है. I'll see it. Once I'm done with the session, you can just consult me. I'll write you accordingly. थैंक यू. Thank you. So I was talking about the tips. तो हमारी सेकेंड टिप है 2 times ब्रशिंग आप कर रहे हैं तो रात को आप ब्रश करके जरूर सो. और सुबह उठ के जो आपके माउथ में सलाइवा होता है उसमें बहुत ज्यादा जो है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है. तो 1 sip of water in the morning without brushing. अगर आप रात को ब्रश करके सो रहे हैं, ऐसी टिप किसी ने नहीं देनी. सारी बीमारियों से दूर भागना चाहते हैं, so you have to listen then. Ma'am, there is a Yeah, please. Hello, ma'am. हाँ जी. I've heard about your product and I was wondering if you're willing and able to make it international or it's only going to be international. My brand? Yes. No, I make it international. That is the dream I have. Definitely. And what measures do you have to take to make it like international? What steps I have to take? So I need partners with me. That is what I'm looking for. So we are currently in collaboration with Malaysia. So let's see how it works. So it is always the collaboration. तभी तो when people come to your universities, they are the investors. That is how the collaborations work. So our brand can go international if we have some collaborations, we have some investors, and that is how we can go internationally. And we are in the process of going international. Thank you so much for putting that forward. Okay. So coming back to tips, रात को ब्रश करके सो रहे हैं अगर आप सब, if you are brushing at night, you don't have to brush in the morning. You just have to take a sip of water, roll it around and take it inside. Because तब आपका saliva जो है उसके अंदर antibacterial, antimicrobial properties हैं. That is helping you wipe off all your oral diseases. आपकी पूरी body के लिए वो कहते हैं ना एक रामबाण. So that saliva creates the immunity for you. तो रात को ब्रश करना इतना जरूरी है. मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं अगर आपने रात को ब्रश करा हुआ है. आफ्टर योर ब्रेकफास्ट देन डू द ब्रशिंग एंड डू ट्राई द माउथ वॉश आल्सो. अगर आप माउथ वॉश रेगुलर यूज कर रहे हैं सो यू आर प्रिवेंटिंग योरसेल्फ फ्रॉम एनी ऑफ द कैविटीज. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज कीप योर ब्रशेस इन द कवर. अपने ब्रशेस को आप अपने कवर्स में रखें, ओपन मत रखें, बिकॉज सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज प्रेजेंट इन योर वॉशरूम्स. आपके वॉशरूम्स में सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हम उसको ओपन ब्रश को रख देते हैं और हम उसको क्लीन करना भी भूल जाते हैं. तो आप अपने ब्रशेस को ब्रश कवर में जरूर रखें और वंस इन अ वाइल आप हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार ब्रश को ओवरनाइट माउथ वॉश में डिप करके छोड़ सकते हैं सो दैट इट इज क्लेंस्ड. एंड व्हेनेवर यू हैव कोल्ड कफ, अगर आप किसी भी वायरल इंफेक्शन से निकल रहे हैं, सो डोंट चेंज योर ब्रशेस. ब्रशेस को चेंज करना बहुत जरूरी है. हम अपने बेड लिनेंस, अपने कपड़े सब चेंज करते हैं, बट वी फॉरगेट टू चेंज आवर ब्रश बिकॉज ब्रश में भी तो वो वायरल इन्फेक्शन गया है. जब आपको कोल्ड है, कफ है, तो अपना ब्रश जरूर चेंज करें. एल्स यू कैन चेंज योर ब्रश एवरी 2 to 3 months. अगर आप उससे पहले चेंज कर रहे हैं और आपके ब्रश के ब्रिसल्स जो है वो पूरे ऐसे फैल जाते हैं, इसका मतलब आप बहुत जोर से ब्रश कर रहे हैं. सो ब्रश करने की जो सबसे बेस्ट टेक्निक है राउंड ब्रशिंग टेक्निक. सो यू कैन ब्रश राउंड सर्कुलर मोशन, डोंट ब्रश इट लाइक दिस. अगर आप ऐसे ब्रश कर रहे हैं सो दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ ब्रशिंग. आप राउंड सर्कुलर मोशन में ब्रश करें, दैट इज द बेस्ट वे टू ब्रश योर टीथ. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज डू क्लीन योर टंग. टंग क्लेंजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने देखा होगा बहुत सारे टंग कैंसर्स, ओरल कैंसर्स, दे आर जस्ट बिकॉज कि हमारे टंग में इंफेक्शन रह जाता है. सो अपनी टंग को नॉर्मल क्लेंजिंग जरूर करें, हम उसे भूल जाते हैं. एंड ऑन एंड ऑफ आप गैस पे थोड़ा पानी गर्म करके उसमें नमक डाल के रिंसेस कर सकते हैं, which is known as warm saline rinses. Warm saline rinses are very good in case you want to prevent yourself from cavities. And most important tip is 6 months में एक बार डेंटिस्ट को विजिट करके अपनी क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग कराएं. इसका एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. मेरी क्लिनिक में once patient came and he told कि मैम स्केलिंग पॉलिशिंग कराने से दांत कमजोर हो जाते हैं.
So the answer to this is कि अगर आपने बहुत देर से ना नहाए, you don't take a bath, and once you take a bath, your skin will feel lighter. So that is what happens with your teeth. अगर आपने कभी उसकी cleaning नहीं कराई, once आप 10 साल बाद 20 साल बाद एक बार cleaning कराएंगे, उसमें से plaque, calculus, करेरा सब निकल जाएगा. So you'll feel lighter. So that is कमजोर नहीं हुए हमारे दांत, they become healthy once you get scaling and polishing done every 6 months. So ये बहुत ही simple टिप्स है, yet very powerful tips. वो कहते हैं ना, हम बेसिक्स भूल जाते हैं, हम सिर्फ एडवांस पे लगे रहते हैं, बट बेसिक्स में ही सब कुछ छिपा हुआ है. सो ये फ्यू डेंटल टिप्स है. कमिंग ऑन टू योर स्किन केयर टिप्स. स्किन केयर में इंपॉर्टेंट इज क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू. अपना फेस जरूर वॉश करें. जैसे वी हैव गॉट आवर फेस वॉश विद द बीड्स ऑफ विटामिन ए, सी, ई. हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मेरी हमेशा से ये सोच रही कि वो उनमें से काफी कंपोनेंट्स हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है. हमारा स्किन किसका बना हुआ है? ACE. सो हमारी बॉडी में ऑलरेडी ये विटामिन प्रेजेंट है. सो वो फेस वॉश है, फेस वॉश से वॉश करें, डेली सीरम लगाएं, मॉइस्चराइजर लगाएं, सनस्क्रीन लगाएं. एंड गर्ल्स, इफ यू आर पुटिंग दैट मेकअप ऑन, मेकअप लगा के कभी मत सोएं. डू क्लेंस और रिमूव योर मेकअप जस्ट विद द कोकोनट ऑयल और द नॉर्मल makeup remover, baby oil, and then apply the night cream or any moisturizer which can be applied, because आपकी सबसे ज़्यादा rejuvenation जो है वो रात में होती है. So that is what you all can follow, and skincare is not only for the girls, it's for both boys and girls, both men and women, mandatory to take care of their skin, because ये body part जो है हमारा सबसे ज़्यादा exposed है. तभी हमारी एक्ने जो है पूरी बॉडी में नहीं होते. एक्ने हमेशा फेस पे क्यों होते हैं? Because that is the only part which is exposed to the pollution. So both the tips, very basic tips given to you. Rest coming on to, in case anybody of you wish to pursue and want to have the deep knowledge of how you can pursue your career. आप साइड में कोर्सेज, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, अगर आप उसके साथ कोई नेल आर्ट का कोर्स करना चाहते हैं, कोई कॉस्मेटोलॉजी इन लेजर्स का कोर्स करना चाहते हैं, कोई माइक्रोनेडलिंग का कोर्स करना चाहते हैं, सो बोथ फॉर मेन एंड वीमेन ये आपके स्किल डेवलपमेंटल कोर्सेज हैं जो आपको लाइफ में कभी भी कोई मुश्किल हो, कोई चैलेंज हो, देन यू हैव वन थिंग अपार्ट फ्रॉम बिकमिंग एन इंजीनियर, अपार्ट फ्रॉम बिकमिंग अ फार्मासिस्ट, आई डोंट नो व्हिच एवर फील्ड यू आर इनटू, अपार्ट फ्रॉम बिकमिंग दैट यू शुड हैव वन स्किल डेवलपमेंट इन योर हैंड, कि आपके पास कोई एक ऐसा हुनर हो जो आप अपने हाथों से कर सकते हो. सो माय रीइंफोर्समेंट है सबको कि ऐसे कोई भी आप कोर्सेज करना चाहते हैं, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, सो वी आर देयर टू गाइड यू इन दैट आल्सो. एंड फर्दरमोर एनी नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट्स, यू आर ऑलवेज वेलकम. बाकी खुश रहो, हमेशा हंसते रहो. आई ऑलवेज से वन लाइन इन पंजाबी दैट सुख होवे भाਵੇਂ दुख होवे, जे ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੀਪ ਸਮਾਈਲਿੰਗ so that you can conquer the world. I think स्माइल तो बनती है अगर चेहरे पे स्माइल होगी so you can win the world. That is with these words I just end off my session and wishing you all the best to future entrepreneurs and future of our society. Wishing you all. Thank you so much. Keep smiling and keep working. Thank you. Thank you, Dr. Gagan ma'am, for inspiring lecture on achieving a success on entrepreneurship. Your insight, challenges, and reward of entrepreneurship were invaluable. We also appreciate your practice advice on dental care and skin care, जो कि सब किसी भी जरूरी है. It's needed to be which added a unique dimension of the session. The expertise and the in enhancing presentation made it truly enhancing experience. We looking forward for implementing these all your points in our daily life. Thank you, ma'am, and thank you everyone. Thank you.